Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I hope you're all doing fine, having a great time back at your home, convenient with the virtual lessons, the initiative that have been started in the last week. Class, we ended up with our first topic for this revisionary session in the last week. And today I intend to start a new topic that is named as control accounts. You all will be familiar with this topic. What is this topic all about? So let's just first start with the basic definition of what is a control account. The definition says that it is an independent check. First of all, what is the word to ponder over here? That is the word independent check on the receivables and payables balance. इसका मतलब है कि ये हम कंट्रोल अकाउंट बना किस लिए रहे हैं? Receivables and payables के बैलेंस के लिए, conducted by transferring the totals of the day books. ये किया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है कंट्रोल अकाउंट? बाय ट्रांसफरिंग द टोटल्स ऑफ द डे बुक्स इन द कंट्रोल अकाउंट. इसका मतलब ये है कि जब भी आपको रिसीवेबल्स या पेबल्स इनके बैलेंसेस को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद आपको इनके ऊपर एक इंडिपेंडेंट चेक चाहिए, एक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चाहिए दैट वेदर व्हाटएवर बैलेंस वी हैव कैलकुलेटेड either that is accurate or not. तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? We prepare a control account. Control account is basically a control measure. इसको बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? So that we may reassure कि हमने जितने भी अपने receivables मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं क्रेडिट के और हमारे जो पेबल्स हैं, हमने इनके जो इंडिविजुअल लेजर्स के थ्रू बैलेंसेस कैलकुलेट किए हैं, क्या वो कैलकुलेशन ठीक है या नहीं ठीक? और ये सारा काम कैसे होता है? ये होता है व्हेन एवर द टोटल्स ऑफ द डे बुक्स के टोटल्स यहां पर क्यों रेलिवेंट है? बिकॉज वट एवर वी आर पोस्टिंग इन आवर डे बुक्स इज एक्चुअली रिकॉर्डेड इन द रिसीवेबल्स अकाउंट एंड इन द पेबल्स अकाउंट. तो उनके टोटल्स को वहां पर ट्रांसफर करके व्हाट डू? वी प्रिपेयर अ कलेक्टिव लेजर. कंट्रोल अकाउंट किसी भी रिसीवेबल का या किसी भी पेबल का एक कलेक्टिव लेजर होता है जो कि आपको एंड पे एक बैलेंस शो करता है. और उस बैलेंस में वो क्या डिपेक्ट करता है कि कितने रिसीवेबल्स हैं जिनसे आपने अभी पैसे रिसीव करने हैं और कितने पेबल्स हैं जिनको अभी आपने पेमेंट करनी है. राइट? This is a brief overview, the background about the control account. Let's move on towards its types और एक छोटा सा डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे हम पोस्टिंग्स करते हैं into the control account. Dear students, let me first tell you that control accounts are of two types as it was depicted over here.
control accounts. They are of two types. The first is sales ledger control account. It is obvious with the word sales that this control account is relevant to the receivables, right? And the second one is purchase ledger control account. Okay, it is evident from the name over here that purchases over here are relevant to the payables. So all entries that are relevant to the payables would be recorded in this particular control account. Now I particularly focused few minutes earlier on the definition on the word of totals. Totals of the day books. हमारी day books कितनी होती हैं? You all know. We've been studying them since O1s. We have sales day book. We have जिसको हम sales journal भी बोलते हैं. We have purchase day book, also famously known as purchase journal. RI journal, which stands for return inwards, sales returns. RO journal, which stands for return outwards. And the most commonly practiced day book, cash book. Now class, what actually happens? In day books के जितने भी individually totals आते हैं, I'm talking about the totals of these day books. उन totals को क्या किया जाता है? उन totals को post कर दिया जाता है. जो भी relevant है day book receivables के, उसको sales ledger control account में post कर दिया जाता है. और जो भी totals relevant है payables के, उनको purchase ledger control account में post कर दिया जाता है. Now, अब ये जो posting हो रही है, obviously ये posting would be ended in the form of a T account. Basically, control account is also a T account. अब उस T account में posting कैसे होती है? We will have a look on that after we are done with the theoretical part of control account. अभी तक के लिए this is how we do it. ठीक है? अच्छा. After you've understood के mechanism हमारा ये है, this is our way. Day books, उनके totals transferred to the control accounts. अब जब मैंने एक बात की थी कि it is an independent check on the arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy का obviously आप सबको पता है. आपकी addition, subtraction of your balances. क्या आपने in short plus minus अपने balances का ठीक किया हुआ है? उसको reassure करने के लिए हम control accounts prepare करते हैं. अब वो कैसे होते हैं? Let's have a look on it. Class, first of all, we must know one thing कि यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about receivables and payables balance. अच्छा. Receivables balance. Receivables balance का क्या मतलब है? Receivables balance का मतलब है how much money is yet to be collected from customers. ठीक है? आपका receivables balance क्या होता है? Receivables balance basically एक figure है. वो figure जो कि अभी तक आपने collect नहीं की customer से भी collect करनी है, right? अब obviously we all know it is a current asset. अब receivables का balance निकलता कैसे है? वो ऐसे आता है, like how do we get the total of it? Normally, हमें इसका total मिलता है कैसे? जितने भी sales ledgers हैं. I hope you all remember
सेल्स लेजर्स क्या होते हैं? सेल्स लेजर आपके आर द टी अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स ऑफ ऑल कस्टमर्स। आपके सारे जो कस्टमर्स हैं उनके जो टी अकाउंट्स होते हैं उनको सेल्स लेजर्स बोलते हैं। इन सेल्स लेजर्स के जितने भी बैलेंसेस निकलते हैं, मतलब हर कस्टमर के टी अकाउंट का जो बैलेंस निकल रहा है, उस बैलेंस को जब हम एड अप करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, उस लिस्ट में हम सारे कस्टमर्स के नाम लिख के जो भी कस्टमर का बैलेंस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक हमारा कस्टमर है एलेक्स, और एलेक्स का आई वोंट राइट ऑल ट्रांजैक्शन, उसका सीडी बैलेंस है 820। तो व्हाट इज इट? दिस इज द बैलेंस ऑफ अ क्रेडिट कस्टमर। इन सब बैलेंसेस को जब लेट्स से ये 820 है, इसी तरह और कोई कस्टमर होगा जिसका 1000 बैलेंस होगा, जिससे हमने 1000 लेना है, जिससे हमने 300 लेना है, जिससे हमने 400 लेना है। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, उसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ये जो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का टोटल होता है, that total is actually your receivables balance. लिस्ट ऑफ बैलेंसेस मतलब कस्टमर्स की जितनी लिस्ट थी उनके बैलेंसेस को ऐड किया तो उसका जो टोटल आया, दैट टोटल इज एक्चुअली योर रिसीवेबल्स बैलेंस। तो रिसीवेबल्स के टोटल बैलेंस को एक तरीकाकार ये है फाइंड करने का कि अपने जितने कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट को टोटल करो और वो टोटल आपका रिसीवेबल्स बैलेंस है। अब इस चीज की रेलेवेंस कंट्रोल अकाउंट्स के साथ क्या है? एक तरीका हमारे पास टोटल फाइंड करने का ये है, कैसे? थ्रू लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, थ्रू लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, एंड वन मेथड इज थ्रू, और यू कैन मेक कंट्रोल अकाउंट्स। एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम कंट्रोल अकाउंट्स बना लें। तो बेसिकली अगर ये जो फिगर आया है, लेट्स से इट इज 48,000 जो टोटल हमारा आया लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, और कंट्रोल अकाउंट्स बनाने के बाद, फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद भी अगर हमारा बैलेंस 48,000 आ जाता है, तो दैट मींस हमने अपनी डे बुक्स में जितने टोटल्स पोस्ट किए हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन हां, अगर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एंड कंट्रोल अकाउंट्स इनके बैलेंसेस में देयर इज एनी डिफरेंस, तो इसका मतलब कोई मिस्टेक हुई है, इसका मतलब कोई एरर हुआ है, इसका मतलब शायद किसी ने अटेम्प्ट की है आपके बिजनेस में फ्रॉड करने की। तो दिस इज व्हाट इज अप्लाइड, दिस इज व्हाट इज मेजर्ड थ्रू कंट्रोल अकाउंट्स। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू एवरीवन। इसी तरह की मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं पेबल्स के बैलेंस के लिए भी। द सिमिलर पैटर्न वुड बी फॉलोड ओवर हियर। इसके आप यू कैन टेक लाइक 20-30 seconds, you can go through this whiteboard, everything that is written, and in case you have any questions, they can be assessed at the end of the lesson. Take like 20 to 25 seconds. So there we go. Let's move on towards the payables balance that is relevant to the purchases.
payables balance. How is the payables balance calculated? उससे पहले we must know that payables का balance होता क्या है? The amount that is due to be paid to our suppliers. एक ऐसी अमाउंट जो कि अभी हमने अपने सप्लायर्स को पे बैक करनी है इज एक्चुअली नोन एज द पेबल्स बैलेंस. ठीक है, अब ऑब्वियसली ये पेबल्स बैलेंस उसी तरह हाउ डू वी फाइंड इट? वी फाइंड इट थ्रू परचेज लेजर्स. अब आई होप यू ऑल रिमेंबर परचेज लेजर्स क्या होते हैं. परचेज लेजर्स ऑल टी अकाउंट्स or personal accounts of suppliers. जब भी हम इन परचेज लेजर का टोटल करेंगे, टोटल से मुराद क्या है यहां पर? अगेन टोटल कैसे आएगा? whenever we will prepare a list of balances. लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का क्या मतलब है? आपके जितने पेबल्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के देखें आपका टोटल कितना आ रहा है. ये लिस्ट का जो टोटल आएगा दैट वुड बी एक्चुअली योर पेबल्स बैलेंस. अब इस पेबल्स बैलेंस के ऊपर एक एरिथमेटिक चेक या इंडिपेंडेंट चेक क्या होगा इसकी एक्यूरेसी पर? प्रिपेयर अ कंट्रोल अकाउंट, अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट. अब वो जब आप कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, लेट्स से योर पेबल्स बैलेंस लिस्ट के थ्रू वाज 25,000, तो वो कंट्रोल अकाउंट में जब आप टोटल्स ऑफ द डे बुक्स पोस्ट करेंगे तो वो तब भी 25,000 आना चाहिए. अगर वो ये बैलेंस आ जाता है, दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो दैट मींस रिकॉर्ड्स हैव बीन रिकंसाइल्ड, दे आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड इन योर बुक्स. लेकिन अगर देयर इज अ डेविएशन between the figures of the list of balances and the figures of the control accounts, that means either there is some mistake or error in your record keeping, or either someone has attempted a malpractice in your accounting records. This is the basic concept behind the control accounts. I hope majority of the things would be clear to everyone. Whenever we move on to the formats of the control accounts, I'm pretty much sure that you all would be very convenient in inculcating the concepts in your mind. Now, I would wind up the lesson after discussing 3 to 4 benefits of control accounts. Now, class, let me tell you one thing. The benefits of control accounts would be assessed in different forms. Like they can be asked as benefits of control account. They may be assessed as uses of control accounts. This way or the other way around, it's one and the same thing. But the same question has been often assessed for 2 marks. It has been often assessed for 4 marks, sometimes even for 6 marks. So you have to be prepared. You have to prepare yourself to write a very concise answer for it as well. Let's say if it's asked for 2 marks, and you have to be prepared that in case if you need some extensive writing, let's say for 6 marks, you must have sufficient knowledge back in your upper story. So let's go through the final thing for today, and that is the benefits or the uses of control accounts. और मैं जितने बेनिफिट्स या यूजेस लिखूंगा वो इंशाल्लाह यू विल सी कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कंट्रोल अकाउंट्स का उसके अंदर वो आपको क्लियर होते जाएंगे.
So the first benefit or the use of control account is Plus, you all must know one thing that आपका जो ट्रायल बैलेंस है ना इसकी प्रेपरेशन एट द ईयर एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये स्विफ्टली होनी चाहिए जल्दी से हो जानी चाहिए क्यों बिकॉज इसी ट्रायल की बेसिस के ऊपर वी हैव टू प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस के आप लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बनाते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में कभी कोई गलती आ जाती है कभी किसी से पैसे आने हैं नहीं आने यू नो देयर कैन बी सो मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स वेयर एवर आवर business has many customers and many suppliers. अब उस सिनेरियो में वी हैव अ शॉर्टकट और वो शॉर्टकट क्या है कि अगर आपको अपने ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स इनके बैलेंसेस स्विफ्टली चाहिए स्पीडी कैलकुलेशन करनी है तो सिंपली कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट में अपने डे बुक्स के टोटल्स उठाओ और वहां पर ट्रांसफर कर दो एज पर द फॉर्मेट जो कि फॉर्मेट हम कल देखेंगे अब वो जब हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन बेसिकली आपकी एक स्पीडी कैलकुलेशन हो जाएगी ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स के बैलेंसेस के लिए ये इतना टायरसम काम नहीं है it is done very quickly it is done very swiftly so this is the first benefit of preparing a control account second benefit आपका जो दूसरा मेजर बेनिफिट है कंट्रोल अकाउंट्स का दैट इज कि समटाइम्स कंट्रोल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते करते यू माइट मेक सम मिस्टेक्स आपने टोटल उठाया टोटल गलत पोस्ट कर दिया कंट्रोल अकाउंट में किसी डे बुक से या लेट से आपने डे बुक का जो टोटल है उसी को गलत कैलकुलेट किया था अब इस सूरत में वन व्हेन एवर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एंड द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बड़ी जल्दी से आप डिटेक्ट कर सकते हो बिकॉज कंट्रोल अकाउंट में अगर आपने गलती की है तो दैट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज टोटल्स बिकॉज वही टोटल्स हमने उठाए थे कंट्रोल अकाउंट में कंट्रोल अकाउंट में जब वो हमने टोटल्स डाले तो हमें पता चला कि वो फिगर ही गलत थी तो उस फिगर को हम चेंज करके हम उसको इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं थर्ड बेनिफिट
class, this acts as an independent check. As I told you, मैंने वो diagram में आपको बड़ा इसको in depth elaborate करके बताया था कि आपकी arithmetical accuracy कैसे पता चलेगी? जब दो balances prepare किए जाएंगे, होंगे वो receivables या payables के. Let's say receivables का अगर balance prepare किया है, तो एक तरीका है through list of balances. और वो list of balances कैसे मिलती हैं? Through the totals of sales ledger. Sales ledger and control accounts, उनका जो बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए. अगर वो इक्वल नहीं आता तो दैट मींस कि आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में कोई इशू हो सकता है. और अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो दैट मींस एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज फाइन. Another benefit, it assists in the preparation of financial statements in incomplete records. And one more benefit I would like to quote. Helps to provide the totals of sales and purchases. Class, the last two benefits that I have written on the board are basically relevant to the preparation, to the direct preparation of control accounts. Incomplete records का जो मैंने लिखा है कि sometimes what happens कि आपके business के जो records हैं वो complete नहीं होते. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हमें कुछ इम्पेडिमेंट्स, कुछ कंस्ट्रेंट्स आते हैं. उन कंस्ट्रेंट्स को दूर कैसे किया जाता है, उन रुकावटों को दूर कैसे किया जा सकता है? थ्रू कंट्रोल अकाउंट्स. कंट्रोल अकाउंट्स कैन हेल्प अस prepare financial statements whenever we have incomplete records. And the last one is it helps to provide the totals of the sales and purchases. अब इसका क्या मतलब है? उसी तरह जब हम कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, इसका फॉर्मेट मैं आपको कल बताऊंगा, तो यू विल सी कि इसके फॉर्मेट की एक ब्यूटी है कि अगर आपको वन वे और द अदर वे अराउंड कोई डिफरेंट फिगर कैलकुलेट करनी है, लेट्स से आपको सेल्स की या परचेज की फिगर चाहिए, तो वो भी समहाउ आप कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू अ कंट्रोल अकाउंट. This is all about the control accounts, the basic concept, the idea, the background, the benefits of the control accounts. I have tried to make it very concise and precise, to the point, and up to the level which is going to be assessed in the Cambridge examinations, inshallah. Abhi ke liye, I have uploaded along a worksheet relevant to these concepts. Go through that worksheet, attempt it, and if you have any queries, you can return back to me at my email address, and obviously after 5 to 7 minutes I'll be taking your questions as well. I hope this was a very fine lesson for everyone. Jot down all the questions or the points that you need to raise and you need to discuss with me. I'll be coming towards the individual mic session for all the students in the next 5 to 7 minutes. Thank you very much. Allah Hafiz.